Hello student, this is your Bharat Group School and Junior College. Welcomes you all, and we are very happy to have lecture with you. So this is your geography lecture, and I am your Mehdabin Miss. Welcomes you to your geography lecture. Previously we have studied about occupation like primary occupation, secondary occupation, and now today we are going to study chapter 6, tertiary occupation. What is that word tertiary occupation refers to or indicates to? The tertiary industry is a segment of the economy that provides services to its consumer, including a wide range of businesses such as financial institutions, schools, and restaurants. It is also known as the tertiary sector or service industry. In our previous chapters, we have studied the primary occupation, which includes the occupation which are based on agriculture, fishing, mines, etc. And then we study about secondary occupation where these natural goods are processed to the finished product. And now we are going to study about tertiary occupation where these finished products are being sold and are produced more, and further they are being sold and reached to the consumers, जिसमें जो है एक वाइड रेंज होती है बिजनेस, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बेकरी है, स्कूल्स है, रेस्टोरेंट्स है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. बिगिन विद इट. टर्टियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आपको यहाँ पर फर्स्ट जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. There are 3 friends from different backgrounds. They decided to become entrepreneurs after graduating from the same college. Rohit is a farmer's son. He pursued his bachelor degree in the arts faculty. He was thinking of continuing his father's profession but at a different level. वो चाहता है कि अपने फादर का ही काम जो है वो उसको आगे बढ़ाए, लेकिन इन डिफरेंट लेवल. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, एग्रीकल्चर टर्न्स इनटू secondary occupation just like food processing, etc. He wanted to grow export quality agricultural products in his 2 acres of farmland. सेजल एक बिजनेसमैन की बेटी है. They produce and sell bakery products on wholesale basis. She has passed her degree in science. She wants to become an entrepreneur in fast moving consumer goods products. Asif is the son of a small hotel owner. He has passed his graduation in event management. He wants to start his own company of event management. After graduating with good grades, they decided to help each other and begin their careers. Rohit, Sejal and Asif tried to find out information about how to start their business. They tried to get maximum plan, organize and then establish their startup during this period. They found information regarding their businesses. Rohit found out that he will have to do major changes in his farmland to grow export quality products like lily, orchid flower and fruit like kiwis, dragon fruits, etc. रोहित जो है उसने अपने जो फादर का बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पर करना चाहता है, तो उसने सोचा कि उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उसको ग्रो करना है. एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी जो है दूसरी कंट्रीज़ में या सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा डिमांड होती है. तो उनमें जो है ऐसे जो है जो थिंग्स या जो ग्रो करना चाहता है वो है कीवीस, ड्रैगन फ्रूट्स में, और फ्लावर्स में लाइक ऑर्किड और लिली वगैरह, जिनकी जो है बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो इसको मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है एयर का मेंटेन करना है. उसको फर्टिलाइज़र्स जो है पीएच वैल्यू जो है अर्थ का या सॉइल का पीएच वैल्यू बैलेंस करने के लिए, रखने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं. और वो उसको पता है टू एग्रीकल्चर ऑफिसर जो फ्रॉम तालुका है उससे भी उसको हेल्प लेनी पड़ेगी. मोर इम्पोर्टेंटली उसको लाइसेंस जो है इस्टेब्लिश करना होगा बिज़नेस के लिए. और इसे ये भी पता है कि उस काम के लिए जो है उसको फॉरेन ट्रांजैक्शंस की भी ज़रूरत होगी.
He also get information from where he would get saplings for the export quality products, क्योंकि ये export quality products है तो ये लोकल मार्केट में अवेलेबल इजीली नहीं होते, तो उसने सब के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उसे पता चला कि ये फ्लावर जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है हाई डिमांड में है और इनके बदले में हाई रिटर्न्स मिलते हैं। ये जो कंट्रीज़ है ये रिच है, इनको जो है 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग में वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ये फ्लावर जो है फ्रेश और उनकी क्वालिटी जो है अच्छी रह सकती है इतने टाइम तक के। तो उसने सोचा कि वो कुछ वेंडर जो है इन कंट्रीज़ में इनसे डायरेक्टली जाकर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए बात करेगा। सेजल ने जो रियलाइज़ किया कि टूथपेस्ट जो ऐसा प्रोडक्ट है जो पीपल जो है डेली यूज़ करते हैं, उसका बैकग्राउंड जो है साइंस से है, इसलिए उसने इसको एडवांस फार्मूला लगाकर जो है डेंटल हेल्थ का यूज़ करके उसने अपने कज़िन ब्रदर से भी हेल्प ली जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और उसने जो चीज़ें पता की जो ज़रूरी है उसके बिज़नेस स्टार्टअप के लिए, वो है मशीनरी, लेबर फोर्स, लैंड फॉर द सेटिंग अप प्लांट, एनओसी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बिफोर टेकिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट, अदर लाइसेंसेस लाइक एनओसी फ्रॉम फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, और इंडस्ट्रीज that will give tubes to fill ready toothpaste and cartons to wrap the product। अब वो टूथपेस्ट को जो है फिल करने के लिए उसको ट्यूब्स की भी ज़रूरत होगी और कार्टन्स की भी ज़रूरत होगी जिसमें उसको रैपअप करे। तो उसने उन इंडस्ट्रीज से भी कांटेक्ट किया और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो है अपॉइंट किया ताकि वो उसका अच्छे से प्रमोशन कर सके। She was reluctant for this startup since it required land and a large capital investment, but she felt relieved that due to the government startup scheme, she can get subsidies loan. Her father helped her solve her land problem. उसके पास पहले से एक छोटा सा जो टाउन में एक सफिशेंट लैंड पड़ा हुआ था, उसने वहाँ पर अरेंज किया अदर बेसिक एमिनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ा। लीज आउट द प्लॉट टू सेजल, उसने वो प्लॉट अपनी बेटी को लीज आउट किया। आसिफ जो है सर्विस मेनली जो है सर्विस के लिए लेबर फॉर हिज स्टार्टअप विच कैन अरेंज बाय हायरिंग देम फ्रॉम वेरियस एजेंसीज लाइक कैटरर्स, फ्लोरिस्ट, हॉल ओनर्स, बैंड प्लेस, साउंड सिस्टम। He also understood how to make permission from various competent authorities to arrange various events, क्योंकि आसिफ जो है ये इवेंट मैनेजमेंट करना चाहता है, इसलिए उसने सोचा कि वो किसी तरह से जो है उसने जो चीज़ें जिसकी नीडेड है, सब जो सर्विसेज को ज़रूरी है, उन सब चीज़ों का उसने अरेंजमेंट करना सीख लिया। उसने समझा कि उसे किस तरीके से जो दूसरी अथॉरिटीज़ है, अलग अलग अथॉरिटीज़ है, उनसे हेल्प लेनी है। दे आर एंजॉइंग देयर वर्क, और उनके बिजनेस जो है आर नाउ देयर पेशेंट्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ होती है जैसे नगर सेवक है, नगर पालिका है, हमारे एरिया में होती है, उसी तरह से बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द चिल्ड्रन इन द स्टोरी इंगेज्ड। तो ये कौन से टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये प्राइमरी तो नहीं है ना ही ये सेकेंडरी है, ये मार्केट से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको इसका टर्म पहले ही बताया, ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर। तो इसे बोला जाता है टेरिटरी इकोनॉमी। while being occupied in the type of economic activity which other activities they interact with। दूसरी कौन सी एक्टिविटीज़ के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल देखा है आसिफ का जो इसका रोहित का जो एक फार्मर का सन है। तो ये सबसे पहले तो अपने एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, यानी जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उससे जुड़ा हुआ है। क्लासीफाई ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यू कम अक्रॉस इन द पैसेज। तो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी वो है बिजनेस, जैसे इवेंट, होटल मैनेजमेंट और मार्केट गार्डनिंग और इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो जब हम ये पैसेज पढ़ रहे थे हमें ये पता चला कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है
These are the economic activities carried out by human. आउट ऑफ देम सम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। बहुत से ऐसे उनमें से बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करती है। वी ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज आउट ऑफ सच एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? मैन कैन नॉट यूज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स रिसीव फ्रॉम दिस एक्टिविटी डायरेक्टली। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हमें ब्रेड इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना है तो हमें वीट की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली वीट को यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद वो ब्रेड में कन्वर्ट होता है। तो दीज प्रोडक्ट्स कैन बी यूज अगेन बाय इंक्रीजिंग देयर वैल्यूज़ और मेकिंग देम मोर ड्यूरेबल। इन दिस केस दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड। This creates new and different products. These are usable, more durable and can be sold at higher prices. जब ये प्रोडक्ट जो है इन पर प्रोसेसिंग होती है तो ये हायर प्राइसेस पर सेल होती है। Through processing, these activities become a part of secondary activities. Secondary activities are mainly dependent on products obtained from primary activities. There are activities which act as the link between the primary and secondary activities and are complementary to both of them. These are mostly in the form of services. If you want a particular service, you will have to pay for it. This includes buying and selling of goods, means of transportation and communication, loading and unloading of goods, credit facilities, marketing, import and export, providing public services are also a part of it. Other services like knife grinders, vegetable sellers, shopkeepers, passengers carriers, postal services, etc. are also included in tertiary activities. All these services are called tertiary economic activities. यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि इसमें टेरिटरी इंक्लूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे पोस्टल सर्विस, पैसेंजर कैरियर, शॉपकीपर, वेजिटेबल सेलर और नाइफ ग्राइंडर्स। और हमें ये भी पता चला है कि जैसे ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट होता है, वहाँ से जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इन कामों के लिए भी इन दोनों के ऑक्यूपेशन के बीच में भी एक लिंक होता है। जैसे फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना या रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना, इसके लिए जो सर्विसेज की ज़रूरत होती है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम फिगर 6.1 देखेंगे, तो आप इसको देखिए। यहाँ पर फिगर 6.1 में मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूडिंग टेरिटरी ऑक्यूपेशनल जो है लिस्टेड की गई है। Classify the following economic activities in the following two categories: active dependent on geographical factors और activities not dependent on geographical factors। तो आपको ये पढ़कर इन एक्टिविटीज़ को दो कॉलम में बनाकर अपने नोटबुक में लिखना है कि विच एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन geographical factors एंड विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन geographical factors। तो geographical factors आपको मालूम है कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज। आप ट्रेड और कॉमर्स का हम देखेंगे, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। जो होलसेल ट्रेड है वो अर्बन होलसेल मार्केट और रूरल होलसेल मार्केट इसमें डिवाइड हो जाता है, और रिटेल ट्रेड जो है ये रूरल और अर्बन में डिवाइड हो जाता है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तो रूरल जो है ये पीरियोडिक मार्केट, स्टोर, स्टिल पेंडिंग, स्ट्रीट पेडलिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट होता है, आगे बढ़ जाते डिवाइड होता है। और अर्बन जो है ये चेन स्टोर, शॉप्स, मॉल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है आगे जाकर डिवाइड होता है रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस में। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन। तो पोस्टल सर्विसेज, टेली कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल, इंटरनेट और सैटेलाइट। हमारे जो टेली कम्युनिकेशन है ये मोबाइल और लैंडलाइन ये दो में ये हो जाता है और डिवाइड होता है। ऑडियो विजुअल जो है इसमें हमारे पास है फिल्म्स, रेडियो, टीवी, प्रिंट एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा जो अदर सर्विसेज दिया हुआ है, अदर सर्विसेज में आता है टूरिज़्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इसमें जो बहुत सारे जो है फैक्टर्स है
जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रेड और कॉमर्स है एक्सेट्रा। तो आप इसको देखिए और इस कॉलम को ज़रूर बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा इसको। ये आपका आज का होमवर्क है और इन क्वेश्चंस के आंसर भी करना है। आप प्लीज़ इसे कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पे देखिए मेक अ लिस्ट थिंग्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ, जो चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इनको डिवाइड करना इन एक्टिविटीज़ थ्रू विच दे हैव बीन ऑब्टेन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आता है, आपका टूथपेस्ट जो है वो टर्टियरी एक्टिविटीज़ से आता है। और डज योर लिस्ट कंटेन एनी प्रोडक्ट्स विच हैव नॉट बीन डिराइव्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ दिस एक्टिविटी, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इन एक्टिविटीज से होकर नहीं यूज होता है। ठीक, इन टेरिटरी ऑक्यूपेशन देयर इज नो डेरिवेशन फ्रॉम द नेचर एज इट इज in primary activities. There may be some products manufactured like secondary activities, but they are in the form of services offered. ये जो है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तब तक के लिए आप जो आपको काम दिया गया है इसे प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन ये पॉपुलेशन पार्ट 2 के आंसर इन डिटेल दूंगी, तो आपको मैं अभी वो दे देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है, आपने जो टेक्स्ट बुक डाउनलोड किए हैं इसमें आप प्लीज़ देखिए, ये आपका जो चैप्टर 2 का पहला पेज है और उसमें आपको यहाँ पर जो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ से डेमोग्राफिक ग्राफर्स यूज पिरामिड्स टू डिस्क्राइब एज और जेंडर ऐसे लेकर आपका आंसर है नेक्स्ट पेज पर, जो 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड दिया है यहाँ से लेकर मैन पावर तक के। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतारिएगा। और उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दूंगी। और थर्ड वाला है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर आपको जो है पेज 19 पर दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन, तो ये पूरा आपको लिखना होगा। प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर हो सके हम नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज़ के क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, stay home, stay safe. Bye.